So quantitative data, what's going to happen is that when you analyze the result, when you get the level of depression, some kid is going to be depressed 10 out of 10 depressed. Some kid is going to be depressed, 9 out of 10. Some kid is not going to be depressed at all, right? So you're going to have a variety of ratings when you just look at quantitative data. What's going to happen is if you just restrict yourself to numbers, होगा क्या कि you won't find the reasons of your depression. हो सकता है कि everyone has different reasons of depression, right? For example, if you ask the person कि भाई why are you depressed, हो सकता है कि घर में चाइल्ड अब्यूज हो रहा होगा, राइट? चाइल्ड अब्यूज हो रहा होगा, उसकी वजह से बंदा डिप्रेस्ड है. अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा चाइल्ड अब्यूज हो रहा है जब तक तुम कोऑर्डिनेटिव क्वेश्चन पूछोगे नहीं. सो हो सकता है यूनिक रिस्पॉन्सेज या significant responses may be overlooked if you just restrict yourself to quantitative answers. So unique reasons, or क्या कहते हैं, significant answers may be overlooked, right? And उसके अलावा you don't really get to know the reasons of those answers unless and until you ask qualitative questions. But the good thing about quantitative data is you get the answers fast. You can analyze them fast, right? I'm going to show you how right now. We can compare it between people, and it's going to be objective. There's no way of making it subjective. Now, good and bad things about qualitative data. Qualitative data, it will give you unique answers, significant answers, right? It will give you in-depth description of people's attitudes, right? It's gonna give you reasons. Bad thing is, while collecting, it's gonna take a lot of time. So it's time consuming to collect, and it's very, very hard or difficult to analyze. For example, as I said, I ask a person what's his reason of happiness, right? He says the reason of happiness is my kids, right? Now it's time for it to analyze it. What does it mean when a person says he's happy because of his kids? One person can say, you know what, this person is a good father, that's why he's happy because of his kids. That's the analysis. Another researcher could go, you know what, this person misses his childhood, had a bad childhood, so he's finding joy out of his messed up childhood by being happy for his kids. So if he gets happy for his kids, he kind of fixes his childhood that he had, in his life. That's one another analysis. So what's going to happen is when you analyze uh, qualitative data, not only you're going to have chances of subjectivity, as in one person is going to say something else, other person may analyze it something else. There's also a chance that it's going to be very, very time consuming to analyze, because you're going to have to look at many things, many wording pattern. What else did he say about kids, right? So you're going to look for patterns in his क्या कहते हैं, words. It's very tedious to do, and it's going to be subjective. All right. Uh, what's more bad thing about the qualitative data is that, as I said, biasness can occur. The biasness can be from the experimental perspective as well. That's why it's going to be subjective. All right. उसके अलावा, ठीक है ना, there's not much to it. ठीक है, qualitative data is then उसके अलावा fine on its own. It's going to give you in-depth data. It's going to give you unique data. Bad thing about it is consuming, very hard to analyze. It's very subjective. Quantitative data, good thing is fast answers, fast is very fast to collect, fast to analyze. You can compare. It's objective. Bad thing is you don't get the reasons and you miss out on some unique or significant answers. So we are doing quantitative and qualitative data both, right? We're doing type of data that you're gonna have. Now we come to data analysis. Now this is gonna be a part which involves some mathematics, right? Uh, so yeah, there is some math involved in your data analysis part for psychology. Why do we do it? What's the function of data analysis, right? I hope I can make it easier for you guys. So when you discuss data analysis in your 9990, you only discuss it for quantitative data, right? Qualitative data का data analysis नहीं होता क्योंकि तुम्हारे अंदर सिखाया नहीं जाता ये. So let's suppose, what do we mean by data analysis? Basically, you have bunch of numbers, right? Bunch of numbers, right? The data analysis, what do you do with them? How do you find what these numbers mean? It's called data analysis. What do these numbers mean, right? Our job is to find the meanings behind these numbers, and that's what data analysis means. So
Data analysis basically consists of statistics. Stats मारते हैं. Now stats तुम्हारे पास दो तरीके के होंगे. There's measure central tendency, right? And there's a measure of spread. Remember these two words, measure of spread and measure of central tendency, right? If your English is good, you're gonna get it. If you know if you can find any word that you find familiar, for example, you might understand what central means, you might understand what spread means, then you're gonna have an easier time. So let's suppose, you know what, let's make a fake graph. Well, this is ऐसे ही होता है ना ग्राफ. तुम्हारा एक ये वाला एक्सिस होता है, vertical axis, then you have a horizontal axis, right? Alright, so basically इसको पतला कर लो. हाँ, इस तरह का एक्सिस होगा, right? And I know कि क्या पता तुम्हें बचपन के अंदर, you know what, in your math class, for example, let's suppose कि ये वो तुम plots ग्राफ पे बनाते थे, right? For example, जो भी coordinates आते थे तुम ग्राफ पे उसको डॉट लगा देते थे, something like that, right? How many of you have done this? कि ग्राफ पे डॉट्स लगाते हो, प्लॉट करते हो? Or just completely new to you guys and आज तक कभी नहीं किया? या तो किया हुआ होगा या तो बिल्कुल नहीं किया होगा. क्या सीन है? अगर किया हुआ है बता दो, नहीं किया हुआ बता दो. You have done it. अलीज़े क्या सीन है? कभी ऐसे की चीज की है ये ग्राफ पे लाइन प्लॉट करना, कोऑर्डिनेट्स आते थे मैथ की क्लास में? यस सर. सही है, ठीक है ना. तो अभी मैं मेजर स्प्रेड को छोड़ रहा हूँ, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ. मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो तुम्हें तीन चीजें मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. दैट इज गोना बी द मीन. 3M's, राइट? 3M's को याद करो. 3M's, मीन, median, right, and the mode, right? I hope you guys know what this means, right? नहीं आता कोई मसला नहीं, we can study it in depth. Mean is basically the average, right? Average. Median is the middle number, right? And mode is the most occurring number. ठीक है, ये most frequent number या most occurring number, doesn't matter whatever you call it. ठीक है ना अभी तक? And some people do have difficulty इसके बावजूद कि इसके थोड़ा सा और आसान भी कर सकता हूँ. Alright, think of it this way. Mean, right? When you talk about the mean, the average, right? For example, if I say three numbers, right? 4 and 2, right? That's the, I have three numbers. I have 4, then I have 4, and I have 2, right? इसका average क्या होगा? Average क्या करते हो? जितने भी numbers हैं उनको plus, सबको plus करते हो, right? 4 plus 2, यही किया. And मेरे पास कितने numbers हैं? 3 है. पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, right? So whatever 4 plus 2 आता है उसको तुम divide by 3 करते हो. For example, it's 10 divided by 3. 10 divided by 3 is what? 3.33 ऐसा कुछ आता है, right? That's gonna be your average. ठीक है, that's the mean. जितने भी numbers आते हैं उनको plus कर दो and divide them by जितने भी numbers तुम्हारे पास सामने आए हैं, तुम्हारा mean निकल आएगा. Alright, so hypothetically please assume कि जो average निकल गया है ना मेरे पास, this 3.33, first करो ये 3.33 is the center. 3.33 is the center. Now, I'm going to ask you this. When you collect data, right? For example, तुम्हारे, let's suppose कि तुम एक स्कूल चला रहे हो, you're the principal of a school, right? Fixed scenario, तुम स्कूल का प्रिंसिपल हो. Let's suppose तुम्हारे स्कूल का जो एवरेज रिजल्ट आता है ना,
वो आता है 3.33, राइट? आउट ऑफ कितना ये उससे फर्क नहीं पड़ता. लेट्स सपोज 3.33 इज द एवरेज रिजल्ट दैट यू गेट, राइट? एंड 3.33 बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेट्स सपोज. ठीक है. नाउ एज अ प्रिंसिपल, डू यू वांट योर रिजल्ट्स, जितने भी बच्चे के रिजल्ट्स हैं, as close to 3.33 as possible? As a principal, you want them very very far away from 3.33 as possible. What's this gonna be? 3.33 बहुत अच्छा रिजल्ट है. तुम्हारा रिजल्ट क्या, तुम 3.33 से करीब चाहोगे एज अ प्रिंसिपल? ये सबके रिजल्ट दूर आ रहे हो 3.33 से. क्लोज. अलीजे क्या सीन है? व्हाट डू यू से? 3.33 करीब रिजल्ट आना चाहिए तुम्हारे एज अ प्रिंसिपल, ये दूर आना चाहिए. एक पता नहीं कहाँ है, दूसरा पता नहीं कहाँ है. करीब आना चाहिए. करीब आना चाहिए, right? Because 3.33 is a good thing and you want your result to be close to the good thing, right? All right. So makes sense. You are thinking on the right track. Now, तुम्हारा जब स्कूल का रिजल्ट जो सारे बच्चों का 3.33 से करीब आ रहा होगा ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो डेटा है बिल्कुल सेंटर की तरफ आ रहा है. ठीक है, 3.3 से सेंटर है. जितना देर तुम्हारा 3.3 के करीब होगा उतना, इसका मतलब तुम्हारा डेटा इतना सेंटर के करीब होगा. ठीक है. तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या मतलब होता है? डेटा आपका कितना उस सेंटर के करीब है वो मालूम करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में. हाउ क्लोज इज योर डेटा टू द सेंटर. ठीक है, आम लफ्जों में. अच्छा, अब सवाल, क्या हमारा डेटा सेंटर की तरफ होना चाहिए? यस, होना चाहिए. मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिए कि डेटा सेंटर के करीब होना चाहिए. अगर ज्यादा फैलेगा तो मसले हैं. ठीक है. अब हम जनरल बात करते हैं. ठीक है, नाउ दैट कॉन्सेप्ट कि डेटा सेंटर की तरफ होना चाहिए. अब क्या सीन? डेटा सेंटर की तरफ होना चाहिए. सो लेट्स सपोज आई टेक दिस एग्जांपल, राइट? ये जो है ये सीन है, ये मैं बनाया हुआ है, ये मैं डॉट प्लॉट किया, राइट? बचपन में, राइट, हमें ये इन डॉट को कनेक्ट करना होता था. याद है? इन डॉट को कनेक्ट कर दो, लेकिन शर्त क्या रखते थे? एक लाइन बनाओ जहां पे ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएं, या ज्यादा से ज्यादा डॉट उस लाइन के करीब हो. लाइक लाइन ऑफ बेस्ट फिट. याद है लाइन ऑफ बेस्ट फिट? लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक लाइन बनानी होती है पूरे ग्राफ के अंदर जहां पे सारे लाइंस को मीट कर रहा हो, राइट? तो आप किस तरह बनाओगे? यू आर गोना मेक समथिंग लाइक दिस. ऐसे कुछ करोगे, राइट? मतलब ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस, कोई ना कोई ऐसा. ठीक है. You're gonna make a line that's gonna be close to many lines many dots as possible, right? You cannot connect all the dots, कोई मसला नहीं. Make a line that's very close to most of the dots. So let's suppose ये line है, how many dots are very close to this dot? This line, एक डॉट इधर है, दूसरा डॉट इधर है, तीसरा, चौथा, चलो 4-5 डॉट तो करीब है, बाकी 1-2 दूर है. तो दिस इज ओके, समवट गुड लाइन. ठीक है, ये होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ऑलराइट. अब ग्राफ, अब क्या कहते हैं? या प्लीज लुक एट द ग्राफ, राइट? प्लीज लुक एट द ग्राफ. जहां से लाइन जा रही है, पूरे डॉट का पैटर्न जो है ना, ये फॉर एग्जांपल 3 डॉट इधर है, 1 डॉट इधर है, 3 डॉट नीचे, ऐसी है 7 डॉट्स है ना इधर. आई एम गोना आस्क यू दिस. ये जो लाइन जा रही है, राइट, पूरे डॉट के पैटर्न के सेंटर में से गुजर रही है. ऑलमोस्ट पूरे डॉट के पैटर्न से, जहां में 7 डॉट का पैटर्न बनाया उसके सेंटर से गुजर रही है. और इसे सेंटर से गुजर रही है, या तुम्हें क्या लगता है? सेंटर से गुजरी? नहीं गुजरी. पूरे जो डॉट का पैटर्न, 7 डॉट्स का पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? यस. आप उस 7 डॉट्स के पैटर्न जो भी बना हुआ है पैटर्न, ठीक है ना, क्या मैंने जो लाल वाली लाइन उसके ऑलमोस्ट सेंटर से गुजारी है, या मैं साइड से गुजार रहा हूँ? पूरे 7 डॉट के पैटर्न को देखो. सर ऑलमोस्ट सेंटर से. ऑलमोस्ट सेंटर गुजारी, सही है. अच्छा, तो नाउ वी कैन अग्री कि यार जो भी शेप बना हुआ है, ठीक है ना, पूरे ग्राफ के अंदर ये जो लाल लाइन सेंटर से गुजर रही है. अब मुझे, ठीक है, करना क्या चाहिए? आई वांट दैट मींस ज्यादा से ज्यादा
आई वॉन्ट आइडियली क्या होना चाहिए, आई वॉन्ट दीज डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं, टू बी एज क्लोज टू द रेड लाइन, राइट? क्यों? क्योंकि यू अग्रीड दैट द रेड लाइन इज द सेंटर. So I want Yeah. all my dots to be as close to the red line, right? This is what the major center tendency is. I want many things to be close as a center. So basically, I want many dots to be as close to the red line as possible, because the red line is the center. Now you इतना समझ में आ जाए, so हम आगे बढ़ेंगे. I want many things. I want all my data to be close to a red line as possible, because red line is the center. ठीक है? क्योंकि the center is a good thing. All right. So your red line है ना, this red line is the mean, right? This red line is the mean. ठीक है? This red line is the median. Also at the same time, this red line is the mode. ठीक है ना? ये किस तरह है वो बाद में की बात है. But in the best cases of all the scenarios, the red line is the mean, is the median, is the mode, right? So you want your data to be as close to the red line as possible. And how close is it to the red line? इसको हम कहते हैं major tendencies. And वो इन तीनों से पता चल जाता है. Mean से भी पता लग सकता है कि तुम्हारा डेटा red line के कितना करीब है. Median से भी पता लग सकता है in some cases, and mode से भी पता लग सकता है in some cases. But this is what they all three of these things mean to do. To find out तुम्हारा जो dot है red line के कितना करीब है, right? ये पता लगाते हैं. मुझे 10 सेकंड दो. I can't hear you. Or I don't know. Alright, ठीक है, तो इतना समझना. I'm gonna show you guys something else, right? अभी थोड़ा सा मैथ है, right? थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, but stay with me. थोड़ा बहुत आसान बनाने दो. Bell shape curve. Bell shape curve. Let's go. कौन सा सबसे आसान है? ये सबसे आसान है. ठीक है, चलो. बेल शेप कर्व, ठीक है ना? ये कर्व है जो बेल की तरह दिखता है, राइट? इट्स अ बेल शेप कर्व. व्हाट डज दिस कर्व डू? तुम लोगों ने बचपन में बनाया हुआ, तुम लोग पता भी नहीं होगा बेल शेप कर्व बनाया हुआ तुम लोग, अगर पता हो. ये बेल शेप कर्व जो बच्चों ने बनाते थे, तुम इस तरह बनाते थे. फॉर एग्जांपल ये यार, ये है ये. फॉर एग्जांपल जहाँ तुम बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाते थे ना, ये फॉर एग्जांपल ये दूसरा बार ग्राफ है, ये तीसरा वो है बार, ठीक है ना? ये ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता है, राइट? इसको मैं इसको यूं कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं यूं कर दूंगा, राइट? अच्छा, याद है फिर इन बार, ये एक बार है, राइट? दिस वन बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार है. इसके तो मिड पॉइंट के ऊपर एक डॉट बनाते थे, बिल्कुल ऐसा. कैसे यार, ये इस तरह करके ना, ये मिड पॉइंट के ऊपर डॉट बनाते थे, राइट? अब जब मिड पॉइंट के ऊपर डॉट बनाते थे, याद है, यू गाइस कनेक्टेड द डॉट्स. तो फिर जो तुम्हारा जो कनेक्शन बनेगा is gonna be something like ये, फिर ये करके. let me show you what your looks like. इस तरह तुम लाइन बनाते हो, कनेक्ट करके. ऐसे कुछ किया है बचपन में बार ग्राफ के साथ? ठीक है, अलीजा तुमने भी किया होगा, ठीक है? तो अब ये करते क्या, ये सीन क्या था? बेसिकली तुम लोगों से ना बार ग्राफ नहीं बनवाते थे, तुम लोगों से असल में ये बनवाते थे, ठीक है? लाइक यू कैन सी द रिजेम्बलेंस कि यार ये और ये कैसे मिलते हैं. यू कैन सी द रिजेम्बलेंस.
तो तुमसे ये कर्व बनवाते थे, बेल शेप कर्व। अभी बेल शेप कर्व है क्या चीज? बेल शेप कर्व कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम लोगों का इंटेलिजेंस मेजर करें, लाइक वी वांट टू फाइंड आउट हाउ स्मार्ट पीपल आर, ठीक है ना, हाउ स्मार्ट आर पीपल इन जनरल, ठीक है ना। तो तुम क्या करते हो, तुम 3 लोग के पास जाओगे, राइट, टू फाइंड आउट हाउ स्मार्ट आर पीपल। लोग का आईक्यू क्या है जनरल। अब बहुत बुरा दिन था, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो दैट्स व्हाई यू ओनली वेंट टू 3 पीपल टू कलेक्ट द डेटा, राइट। कोई मसला नहीं, दैट्स व्हाई वी ओनली हैव 3 ऑब्जर्वेशंस। हमने 3 ऑब्जर्वेशन को इस बार ग्राफ को प्लॉट कर दिया, राइट। See, this is the vertical axis and this is the horizontal axis, ठीक है, and तुमने उसको प्लॉट कर दिया। अच्छा, तो ऑब्वियसली सीन क्या होगा, ये वाला साइड जो होगा लोवेस्ट आईक्यू होगा, राइट, तो तुम बार प्लॉट करते हो, एंड वो वाली साइड जो होगी दूसरी वाली उस एंड वाली हाईएस्ट आईक्यू वाली होगी, राइट, ठीक है। एंड हम एक और भी कर देंगे, एंड जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। सो एक काम मैं कर देता हूँ तुम लोग की जिंदगी आसान बनाने के लिए, नीचे वाला मैं कर दूंगा ग्रीन, राइट, एंड आई एम गना इसको भी ग्रीन कर देंगे, सो यू गाइस नो कि दिस इज दिस थिंग। सो बाय, अच्छा बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आईक्यू है लोगों का नॉर्मल आ रहा है या हाईएस्ट आ रहा है या लोएस्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा आईक्यू। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हाई भी नहीं है, नहीं, इट्स नॉट हाई। चलो मैं तुम लोगों की जिंदगी और आसान कर दूंगा, चलो यार मैं लेबल्स डाल देता हूँ, ठीक है, लेबल्स डाल दूंगा। 100, ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, राइट। एक और बढ़ा देंगे हम नीचे, फिर 0 हो जाएगा, सही है। You guys do know that this ये जो line है, it represents the number of people, right? क्योंकि number of people कितने हैं, and जो नीचे है, जो green वाला जो axis है, जो नीचे वाला, it represents the level of IQ that people have. Now I'm gonna ask you this, right? Which level of IQ is the highest? Is it the highest IQ or the lowest IQ or the normal middle IQ? जो normal average IQ आती है, according to this graph. For example, ये जो point है ना, ये लाल वाला डॉट है, तुम्हें देखना है कि सबसे पहले तुम्हें पता है ये लाल वाला डॉट हाईएस्ट आईक्यू वाला है, तुम्हें पता है ये लाल वाला डॉट लोएस्ट आईक्यू का है, तुम्हें पता है ये लाल वाला डॉट बीच वाला जो है ये एवरेज आईक्यू वाला का है, तुम नहीं पता लगा लिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या देखना है कि यार ये वाला जो लाल वाला डॉट है ना, ये कितने नंबर ऑफ लोग पे आ रहा है, ऑलमोस्ट 35, ठीक है ना। ये वाला लाल वाला डॉट कितने नंबर ऑफ पीपल पे आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 35, 39। ये लाल वाला डॉट कितने नंबर पे आ रहा है, 55, ठीक है ना। So 55 people have average IQ, 39 people have low IQ, 35 people have high IQ। ऐसी केस में अभी कोई कंफ्यूजन, मैंने अभी क्या किया, कोई मसला अभी मैंने क्या किया, इसमें भी मसला था। अलीज अभी जो मैंने किया है 55, 35, 39, ये कैसे निकाला, इसमें कोई मसला था अभी?
Sir, I don't think so. आ गया, समझ में आ गया? तो Yes, sir. ठीक है, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ यार, सबसे जो ज्यादा आईक्यू कौन सा आ रहा है लोगों का? हाईएस्ट आ रहा है, एवरेज आ रहा है, लोएस्ट आ गया? एवरेज आईक्यू आ रहा है। देखो ये जो बीच वाले मैं बता ना, ये वाला लोएस्ट आईक्यू वाला ग्राफ है, ये वाला हाईएस्ट आईक्यू वाला ग्राफ है, ये वाला एवरेज आईक्यू वाला ग्राफ है। मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लोगों का कौन सा वाला आईक्यू है? सबसे ज्यादा लोगों का ये वाला आईक्यू एवरेज, राइट? अच्छा, अब इसके बाद ठीक है, अब बेल शेप कर, सॉरी एक और सवाल तुम लोग से पूछना, नॉर्मली लोग का आईक्यू क्या होना चाहिए? नॉर्मली हाई आना चाहिए, लो आना चाहिए, एवरेज? नॉर्मल किसको कहते हैं? वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी लो, या बीच एवरेज को कहते हैं? नॉर्मल किसको कहते हैं? इतना बता दो पहले। नॉर्मली लोग का जो आईक्यू आता है ना, बहुत ऊंचा आता है, बहुत कम आता है, या एवरेज आता है? नॉर्मली एवरेज आता है, ठीक है ना? अलीजा, डू यू एग्री कि नॉर्मली लोग का आईक्यू वेरी वेरी हाई आएगा, वेरी वेरी लो आएगा, एवरेज आएगा? नॉर्मली कहेंगे नॉर्मल Average. आईक्यू, एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ यार, जो भी मैं प्लॉट करूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है ना, ये जो बेल शेप कर्व है, जो सेंटर है, ये जो सेंटर जो उठा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में, क्या यहाँ पे जो भी चीज आ रही होगी, क्या यहाँ पे जो बीच में वाली चीज आती है ना, ये सेंटर वाला जो उठा हुआ है, सबसे जो पीक पॉइंट है, सेंटर में क्या सारी नॉर्मल चीजें आती हैं? क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं? इफ यू लुक एट दिस, बीच में नॉर्मल आईक्यू है, तो जो भी चीज हम मेजर करोगे यहाँ पे, आईक्यू, डिप्रेशन, कुछ भी, क्या बीच में वही वैल्यू आती है जो नॉर्मली तौर पे अज्यूम्ड है कि नॉर्मल है? ठीक है, तो जो बीच में आती है ना, जो बीच में जो सीन है, जो वो है नॉर्मल। अब जो क्या कहते हैं, राइट साइड पे वो भी एब नॉर्मल है, लेफ्ट साइड पे वो भी एब नॉर्मल है, ठीक है ना? मतलब एब नॉर्मल मतलब नहीं क्या खराब वाला एब नॉर्मल, एब नॉर्मल होता है इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट कॉमन, ठीक है? सो हाईएस्ट आईक्यू वाला सीन इज नॉट कॉमन, lowest IQ वाला सीन is not common. What is common is average IQ. So whatever is on the यहाँ left side या right side, it is called not common, ठीक है ना? एंड जो बीच में जो चीज आ रही होगी नॉर्मली तुम्हें चीज देखते हैं तो इट इज कॉमन, ठीक है ना? अब मैं कॉमन की जगह नॉर्मल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, तो जब भी तुम ठीक है ना, आप मीन मीडियम मोड मेजर करते ना, यू जस्ट वांट फाइंड आउट कि यार जो मेरे जितने भी डेटा आ रहे हैं ना, जो भी मेरे पास नंबर आ रहे हैं, जो भी मेरे पास जो भी चीज आ रही है, वो कितना सेंटर के करीब होती है, और इस पूरे पूरे पिक्चर के सेंटर कौन सा, ये वाला लाइन, राइट? ये सीन है, दिस इज सेंटर, राइट? सो यू वांट फाइंड आउट कि यार ये इस सेंटर के इर्द गिर्द मेरा कितना डेटा आ रहा है, दैट्स दिस इज कॉल्ड मेजर सेंटरनेस, राइट? ये जो सेंटर है बेसिकली दिस इज, इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज व्हाई वी से मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर के इर्द गिर्द कितना डेटा है। तो बेसिकली हम देखना चाहें कॉमन कितना डेटा आ रहा है, कॉमन कह सकता हूं मैं ये, कितना नॉर्मल डेटा आता है, कितना कॉमन डेटा आता है, कितना सेंट्रल करीब डेटा आता है, क्या कह सकता हूं मैं ये? अब इतना समझ लिया, कोई मसला नहीं। अच्छा, ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी से मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब तुम्हें पता है, मीन मीडियम मोड है, ठीक है, मीन मीडियम मोड। अब मीडियम मोड किस वजह लगा जगह लगाते हैं, इन सब के अलग फंक्शंस हैं, मैं भी बताता हूँ कैसे। इन तीनों का मकसद एक ही है, एंड दे डू आस्क यू सीआई के भाई यहाँ पर कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लगेगा, पूछते हैं। मतलब यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा लगेगा, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो मीन लगता है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो मीडियन मोड लगता है, ठीक है ना? लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी चीजें कहते ही इन तीन को है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, लेट्स फाइंड आउट।
लेट्स सपोज देयर स्टूडेंट जहाँ पे लेवल ऑफ डिप्रेशन इन स्कूल ढूंढना है, इन स्कूल भाई स्कूल में कितना लेवल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या किया, आप कहते हैं ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 बच्चे हैं, ठीक है ना। 8 बच्चों के पास क्या लेवल ऑफ डिप्रेशन मालूम करने के लिए कि भाई क्या है लेवल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 है, तो एक बच्चा कहता है मेरा लेवल ऑफ डिप्रेशन 50 आउट ऑफ 100 है, जबरदस्त, ठीक है ना, 50 आउट ऑफ 100 आ गया। दूसरा बच्चा कहता है मेरे पास जो डिप्रेशन 30 आउट ऑफ 100, 40 है, एक और कहता है 50 है, एक कहता है 99 है, दूसरा कहता है 89 और 79, जो भी है, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ डिप्रेशन दैट यू हैव फाउंड, ठीक है, सारे बच्चों का। 8 बच्चों को तुमने गए, 8 बच्चों ने ये स्कोर दिए, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल के पास लेके जाता हूँ, यार ये ना आपने मुझे लेवल ऑफ डिप्रेशन स्कूल में ढूंढने के लिए दिया था, ये लिस्ट, ये लेवल ऑफ डिप्रेशन स्कूल में। वो कहेगी यार ये तो बच्चों के स्कोर है, मुझे स्कूल का डिप्रेशन कितना आ रहा है ये बताओ। ये स्कूल का डिप्रेशन है, ये बच्चों का डिप्रेशन है, राइट, यही है ना। स्कूल का डिप्रेशन तो ये नहीं है, ये सारे इंडिविजुअल बच्चों का डिप्रेशन है। तो स्कूल का डिप्रेशन मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ पे एवरेज मालूम करूँ, ठीक है ना, कॉमन सेंस के हिसाब से बता देना, क्या मैं यहाँ पे एवरेज मालूम करूंगा, इन सारे बच्चों का एवरेज क्या आ रहा है, या मैं सारे वैल्यू से मिडिल वैल्यू मालूम करूंगा, या मैं सारे वैल्यू में से वो वैल्यू देखूंगी जो सबसे ज्यादा आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा दोबारा रिपीट होता है, क्या करूंगा मैं। अभी से क्या करूंगा मैं, ये चले गए। शायद इसके एवरेज निकाल के देना क्या होता है, इसका एवरेज क्या होगा। सिक्सटी फाइव, ठीक है ना, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं अभी कैलकुलेटर चेक नहीं करा, तुम्हें बोलिए 65, चलो 65 में मान लेता हूँ, ठीक है, 65 मान लेता हूँ। तो लेट्स सपोज इनका जो एवरेज आ रहा है दैट इज 65। सो दिस टेल्स यू कि भाई पूरे स्कूल का डिप्रेशन कितना है, ठीक है। अच्छा, तो अब कॉमन क्वेश्चन आंसर, तो बेसिकली कॉमन चीजों के सवाल के जवाब देना। क्या मैंने 65 ढूंढने में, टू फाइंड द आंसर 65, क्या मैंने हर बच्चे का स्कोर कंसिडर किया, यस और नो, पहले ही बताओ। ठीक है, तो मीन किस लिए फायदेमंद है, क्योंकि मीन इज यूजफुल बिकॉज इट कंसिडर्स ऑल द स्कोर्स, पहली बात है कंसिडर्स ऑल द स्कोर। वहां सवाल होगा कि क्या बाकी सब सारे स्कोर कंसिडर नहीं करते, द आंसर इज नहीं। मैं बताता हूँ किस तरह, मीन इज द ओनली वन दैट इज गोइंग टू कंसिडर ऑल द स्कोर, सही है, अच्छी बात है। दूसरी बात है कि मीन जो है ना सारे स्कोर को लेकर समराइज कर देता है। अब मैं प्रिंसिपल के पास ये सारा बच्चों अलग डेटा लेके जाता कि भाई ये डेटा, प्रिंसिपल पागल जाती है, कहती मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक फिगर बता दो जो एवरेज है, समराइज कर देता है, 65 इज द समरी, ठीक है, समराइज कर देता है, ये फायदेमंद चीज है। अच्छा, बुरी चीज क्या है, मैं बताता हूँ बुरी चीज क्या है। अच्छा, मैं प्रिंसिपल के पास गया, 65 इज द लेवल ऑफ डिप्रेशन इन योर स्कूल, यही चाहते थे प्रिंसिपल, मैंने बता दिया 65 इज द लेवल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि यार इस पूरे ग्राफ के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो तुम समझते हो कि यार इसको फौरन हेल्प की जरूरत है, कौन अगर बच्चा है तो कौन से बच्चे हैं इसमें, इंडिविजुअल अगर देखो।
ठीक है, 99 वाले बच्चे मतलब आउट ऑफ 100 99 है, वो तो एक स्कोर दूर है 100 और 100 मीट करने के लिए। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल 65 की समरी लेके चला गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ने समरी मांगी थी, मैं 65 लेके चला गया, क्या 65 मुझे बताएगा कि 99 वाला बच्चा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या क्या मुझे बताएगा सिर्फ 65 अगर मैं देखूं?